हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था आप लोगों से खुद ही करने के लिए, तो क्या आप लोगों ने किया? ओके। इसका आंसर आता है अपना ए। ठीक है। 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में हमें फाइंड करना है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट देयर। सो वी हैव अमोनिया एंड मास है इसका 4.25 ग्राम। इसमें आपको एटम्स काउंट करने हैं, है ना? देखिए, थोड़ा डायरेक्टली मैं टॉपिक यूज कर रहा हूँ, यहाँ जो गौर कीजिएगा आप लोग। व्हेन वी नो बाय द मोल कॉन्सेप्ट, व्हाट वी नो that molecules present in 1 mole is this one, and mass is 17 for ammonia. And what we also know that in one molecule 4 atoms are there. Okay, so if this is the number of molecules, so definitely we have to multiply by the number of atoms. Means now we are finding directly the number of atoms here. Okay, remember that 1 मोल में मॉलिक्यूल्स ये है अपने पास, 1 मोल का मास ये है अपने पास, हम जानते हैं। एंड वी ऑल्सो नो इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बाय द फॉर्मूला that there are 4 atoms. It means we can say in 17 gram of ammonia, it is the total number of atoms present there. Okay. Now we have to find the atoms when the mass is 2.45 gram. It means you have to solve this value only. So when we solve for x, it is 4 into 4.25 into 6.022 into 10 to the power 23 by 17. Okay. So when we cut or divide, you can say here it is 4.25. It is. So x will be directly, it is 6.022 into 10 to the power 23 atoms present there. ठीक है, चलिए now it is the next 6 question we have. So the question we have, it is the mass of one atom of hydrogen is approx. अब देखिए, थोड़ा सोचिए इस बारे में, पहले सॉल्यूशन करें हम लोग 6 क्वेश्चन का। मास ऑफ वन एटम of hydrogen, what we know by the mole concept, that 6.022 into 10 to the power 23 atoms are present in 1 gram of hydrogen. Okay, now we have one atom and we have to find the mass. Let's say it is x mass. Okay, so now you have to solve this x. So it will be 1 upon 6.022 into 10 to the power 23. When we solve it, 1.6 10 to the power minus 24 gram. This will be the answer. So C is the correct option there, we can say. Okay. Now, seventh question we have, it is a gaseous mixture contain O2 and N2 in the ratio of 1:4 by weight. It is the main point here that you have to remember. By weight or by mass, we can say here it is same thing. Okay. So O2 and N2 weight we have. So a gaseous mixture contain O2 and N2 in a ratio of 1:4 by weight or by mass, whatever, it is same thing.
सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा देखिए आपसे, ठीक है। मास का रेशियो दिया है और पूछा क्या है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1:4 ध्यान रखना इसका। पहले ऑक्सीजन लिखा है मतलब ये 1 ऑक्सीजन का मास है, फिर N2 लिखा है मतलब ये 4 एज्यूम कर सकते हैं आप कि मास किसका है, N2 का अपने पास, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व इट। O2 एंड N2 रेशियो गिवन है आपको 1:4 बाय वेट बोल दिया इसे यहाँ पे, या फिर बाय मास, इट विल बी सेम थिंग फॉर अस हियर, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल। As we know, moles are directly proportional to molecules, na? So it means if we find the ratio of moles, so definitely that will be the ratio of molecule also. Getting the point? Because molecules क्या हैं? मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बेटा हम जानते हैं। और कोई भी गैस हो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स तो सेम होंगे, एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिसिटी, बट मॉलिक्यूल्स तो सेम ही होंगे ना। तो हम क्या कह रहे हैं, O2 अपॉन N2, रिमेंबर दैट 1:4 तो क्या दिया, इनका मास गिवन है जैसे हमारे को। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। तुम क्या कह देंगे, 1/32 and 4/28. Why? Because we know O2 का जो बेटा मिलता है अपने को एटॉमिक मास 32 हो जाएगा और N2 का 28. If we are talking atomic mass, it means it will be in AMU. When we say molar mass, so same value will be there, but unit will be gram. Okay. Now, so we have to solve this value. So it is 1 upon 32 like this. Okay. So it is 7 upon 32. तो ये हो गया अपना आंसर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. It is how many atoms are present in a mole of H2SO4. हमें क्या निकालना है, a मोल मतलब 1 मोल। सॉल्यूशन 8 की हम बात कर रहे हैं। H2SO4, if we say एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, तो कितने हैं, 7। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल is 7. Number of atoms in 1 mole H2SO4, 1 मोल मतलब क्या हो गया बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए ना बेटा, ठीक है। इट मीन्स सिंपली क्या करना है आपको, 7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। It will be the answer, and proper in scientific notation if we want, so it will be like this. देखिए वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पे मतलब पावर में, क्यों, पॉइंट राइट से लेफ्ट जा रहा है तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव आएगी, और ये पावर पॉजिटिव पहले से ही अपने पास, सो व्हाट इट विल बी इंक्रीज बाय 1 वैल्यू। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोगों के, तो मैं आगे चलता हूँ। एट NTP 5.6 liter of a gas weight this one 8 ग्राम, मास गिवन है और आपको वॉल्यूम गिवन है ना। और पूछा क्या है, वेपर डेंसिटी।
देखिए वेपर डेंसिटी का ना एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, जो मैंने बताया नहीं है आपको अब तक भी एक्चुअली। वेपर डेंसिटी इंटू टू जब करते हैं तो आपको मिलता है मॉलिक्यूलर मास, हम कह देते हैं सिंपल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वैल्यू कई बार नहीं दी जाती है आपको, पूछा जैसा ना पूछा गया आपसे। तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास, एंड इफ वी नो मोलर मास तो डेफिनेटली बिकॉज वी हैव टू फाइंड वेपर डेंसिटी ना, सो व्हाट वी विल डू, मोलर मास डिवाइड बाय टू करना है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। सो नाउ वी आर हेयर फॉर फाइंडिंग द मोलर मास। ओके, 5.6 लीटर कह रखा है और मास दिया है आपको उसका गैस का 8 ग्राम, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम्म, चलिए, इट इज सॉल्यूशन नंबर 9। गैस का वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर एंड मास दिया है उसका 8 ग्राम, ठीक है। नाउ बाय द मोल कॉन्सेप्ट, ध्यान रखने बात को, हम पढ़ने का टॉपिक अपना क्या भाई, 5.6 लीटर है अगर, तो उस गैस का जो मास है 8 ग्राम है। सो इफ वी फाइंड that volume is 22.4 liter, so it is equal to 1 mole we know, so the mass will be there, it will be its molar mass। okay, आप x निकाल रहे हैं, 22.4 into 8 अपॉन 5.6, आफ्टर पॉइंट दोनों में एक एक वैल्यू है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली, ये 4 आ जाएगा। सो 32 ग्राम पर मोल, इट इज मोलर मास। दिस 1 ग्राम पर मोल का है ना, मतलब मोलर मास, ठीक है। नाउ बिकॉज वी हैव टू फाइंड वेपर डेंसिटी, उसका फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको, क्या होता है, मोलर मास बाय टू, तो इट इज 32 बाय टू, इट इज 16 ग्राम, इट विल बी द वेपर डेंसिटी। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। और इसमें क्या था अपना आंसर भाई, अच्छा ये इसने इंटू नहीं किया था, डायरेक्ट दे दिया है, तो अपन इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए 10th वन क्वेश्चन, देन विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए अगेन वही टॉपिक आ गया, व्हाट वी नो दैट मोल्स इज डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ फटाफट से, हम मोल्स निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जिसके मोल्स ज्यादा होंगे डेफिनेटली उसमें मॉलिक्यूल्स भी अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। अब हमें मोल्स निकालना है। देखिए मास गिवन है आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला बता रखे हैं, ये वाले तीन जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना। तो हम अपने इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि गिवन मास है अपने पास, मोलर मास या एटॉमिक मास हम जानते हैं, हम पुट कर लेंगे उसको, ठीक है। चलिए, सो सॉल्यूशन 10, क्वेश्चन क्या दिया अपने को इसने, के जी, ओके सभी का हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन कर रखी है, 7 and 2, हम यहीं पे निकाल लेते हैं इस टॉपिक को, है ना। देखिए 7 तो जाएगा इसका गिवन मास, और 28 है इसका मोलर मास, तो सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ गए इसके मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पर 2/2 कर देंगे, क्यों, गिवन मास 2 है और H2 दिया है ना, तो H2 मतलब 2 एटम है, तो एक एटम का मास कितना होता है, 1, तो इसका हो जाएगा 1 मोल। यहाँ पे 16/14 प्लस 32 यानी कि 46 लगभग वैल्यू आ जाएगी, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली,
मतलब पॉइंट में वैल्यू आने वाली है, सिंपल अगर हम कहें तो, है ना। 16/32, तो 0.5 वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ भी। ठीक है, यहाँ लगभग 0.3 समथिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा है बेटा अपने पास। देखो, ये 1.4, सॉरी 1/4 है वैल्यू तो मोल्स में, ये 1 मोल, ये 0.3 समथिंग वैल्यू आने वाली है, ये 0.5 मोल है। तो डेफिनेटली वी कैन से जो सेकंड ऑप्शन है अपने पास, इसमें मोल्स ज़्यादा हैं, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे डेफिनेटली। सिंपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फ्रॉम 200 milligram of CO2, 10 to the power 21 molecules are removed. Okay, and how many moles? देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझे इस चीज को, आप यहाँ पे गौर करना। गिवन किया है पहले आपको इसने मास, फिर कह रहा है कि रिमूव किए हैं मॉलिक्यूल्स, और फिर फाइनली क्या पूछा गया आपसे, देखिए, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है अगर डिफरेंट यूनिट रखें हम सबकी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सभी को मोल्स में चेंज कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द फाइनल आंसर इन मोल्स। तो हम मास और मॉलिक्यूल्स दोनों को क्या कर सकते हैं, मोल्स में चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और फिर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, ध्यान दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द टोटल मास गिवन टू अस 200 मिलीग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलीग्राम को हम बनाएंगे ग्राम, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 फर्स्ट ऑफ ऑल। सिंपल है। अब क्या हो गया, ग्राम, अभी इतने ग्राम अपने पास टोटल मास आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड मोल्स बिकॉज ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे बनाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो इट इज द मोलर मास, CO2 है ना भाई। तो CO2 का मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो, 12 प्लस 16 इंटू 2, तो इट विल बी 44, 12 प्लस 32। ठीक है, नाउ इसमें से रिमूव किया गया है 10 टू दी पावर 21 मॉलिक्यूल्स ना बेटा, ध्यान देना, मॉलिक्यूल्स थे। तो आई टोल्ड यू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं अगर गिवन है आपको मॉलिक्यूल्स, तो गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, इट मींस 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो जो भी आंसर आएगा आपका वो मोल्स में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपरली चेक करिएगा, जो भी आंसर आए इसका मार्क करिएगा, कैलकुलेशन है केवल, अब तो कुछ नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 197 किलो, सॉरी 19.7 किलोग्राम गोल्ड रिकवर्ड किया गया है फ्रॉम द स्मगलर। सो हाउ मेनी एटम्स, आपको एटम्स निकालने, सिंपल मास दिया गया है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको आप, मास कितना गिवन है आपको, 19.7 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, और हमें निकालना क्या है भाई, कितने एटम्स रिकवर करने हैं। ठीक है, नाउ टेक अ लुक हियर, नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली, सो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गोल्ड का होता है 197, बट रिमेंबर दैट मास इज गिवन इन किलोग्राम, so we will change it in gram because molar mass is in gram we have. Okay, and now because of यहाँ पर point है तो हम नीचे पुट कर देंगे 1, and after that only one value 7 because of, so 10 will be there, so it will be cancelled out there. So it is 100 moles will be there, and because we have to find atoms,
So 100 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms will be there. Properly solve कर लेंगे आप इसको अगर, then you will get 10 to the power 25, 23 this one and 2 this one because of, okay. So the answer will be D. Okay. Now the question we have it is that which has the highest mass. So it is directly given to you mass that you can see. It is 50 gram. 5 moles क्या रखा देखिए N2, 5 मोल इंटू N2, N2 का मास कितना होता है 28, 1 मोल का, ठीक है. So it will be 140 gram. 0.1 gram atom, remember that is a gram atom, not gram, it is gram atom, means 0.1 mole of Ag. Ag होता है वैसे 108, पर वो तो 1 मोल का होता है, तो it will be this one. take a look here, 10 to the power 23 atoms of carbon. तो इसको आप अगर देखें, मोल्स बना लीजिए पहले, मैं तो कहूँगा इसको डायरेक्टली डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. इट इज मोल एंड मोल आप इंटू कर रहे हैं उसके एटॉमिक मास, तो मास आ जाएगा आपके पास. तो इट विल बी नियरली, यू कैन से नियरली इट विल बी 2 gram. So you can see this is the highest mass we have. Okay. Now next question we have, it is the number of electron in 1 mole of methane. Okay. 1 mole of methane में electrons कितने हैं हमारे पास? Is question number 14. Number of electrons in 1 mole of methane. It is the question we have. Now take a look here. In one molecule we can find very easily number of electrons. So number of electron in one molecule of methane कितना होगा बताइए सोच के. देखिए 6, कार्बन में क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 तो प्रोटॉन 6 हो गए, प्रोटॉन 6 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे. H में 1 into 4, तो 6 plus 4 means 10. अभी तो वन मॉलिक्यूल का है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6.022 into 10 to the power 23 because it is 1 mole na, and it is a question we have. Okay, so simply 6.022 into 10 to the power 23 into 10. Okay, so simply it will be 6.022 into 10 to the power 24 electrons will be there. Okay, so it is the answer. Okay, now how many atoms are present in 1 kilogram of sugar, and it is the formula of sugar that is given to you. Okay, now we have to find atoms.
and if we say its molar mass, okay, take a look, यहीं पे कर लेते हैं फटाफट, छोटे क्वेश्चन है। C12H22O11 मोलर मास क्या हो जाएगा? 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो this one is gram per mole, okay। तो how can we say, take a look here, when 342 ग्राम मास है, देन एटम्स कितने हैं इसके अंदर? देखिए 6.022 × 10⁻23 तो मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर, ठीक। एंड 12 + 22 + 11, so it will be 45, ठीक है। 342 ग्राम में इतने एटम हो गए, ध्यान देना इस पे। देखिए दिस इज 342 ग्राम पर मोल, सो 1 मोल में पहले इतने तो क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल। ये क्या है? मॉलिक्यूल का नंबर है जो हम जानते हैं। और ये क्या है? इसकी एटॉमिसिटी, ठीक है ना। तो 342 में इतने मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में अगर 45 एटम जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इंटू करो, टोटल एटम मिल जाएंगे आपको। नाउ वी हैव टू फाइंड इफ इट इज 1000 ग्राम, ओके। नाउ एक्स फाइंड करना है आपको। तो ये तो आप इंटू डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब इस तरह से वैल्यू को ना, 10⁻, जो वैल्यू अपनी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो इट विल बी 10⁻26 डिवाइड बाय 342, ठीक है। तो रफली 9, बट 9 तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। क्या पॉसिबिलिटी है फिर हमारे पास इसमें, अगर देखें हम लोग तो रफ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक तरह से, ठीक है ना। 99 6 9, it is 30, nearly this one, then okay
वैल्यू तब भी कोई नहीं बन रही यहाँ, तो ऑप्शन में शायद कोई मिस्टेक है, हो सकता है। कुछ हमने गलती की है क्या, चेक करें एक बार। हाँ 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 हाँ, 1 किलोग्राम मतलब ठीक है। आई थिंक ये पावर शायद एक्स्ट्रा लग गई, 26 होनी, 25 रह गया यहाँ पे। ये यही क्योंकि ऑप्शन बन रहा है अपने पास मेरे हिसाब से, और तो कोई ऑप्शन बन भी नहीं रहा कहीं से ना। ठीक है, तो मिसप्रिंट है शायद यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका वैसे। बाकी जब हम सॉल्व करेंगे तो करेक्ट हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ से निकाल के आप इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इट इज क्वेश्चन नंबर 16। इट इज how many number of aluminum ions are present in 0.051 gram of Al2O3. So we can find its molar mass very easily. Okay, take a look. Al2O3, 27 into 2 plus 16 into 3, 54, 48. So 102 ग्राम पर मोल वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास। ठीक है, नाउ टेक अ लुक हियर। भाई जब ये 102 ग्राम है, इफ टेक अ लुक हियर, एल्यूमिनियम जो आयंस हैं वो कितने होंगे, ध्यान देना। 2 इंटू Na हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए भाई। 102 ग्राम क्या है, ग्राम पर मोल कहा ना बेटा हमने, तो मतलब 1 मोल तो हो जाएंगे ये मॉलिक्यूल्स, ये वाले मॉलिक्यूल्स जाएंगे 1 मोल तो। और एक मॉलिक्यूल में दो हैं, Al+3+ जो अपने पास है ना। तो 2 into Na कहते हैं, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में वैल्यू कर सकते हैं इसकी, आप जानते हैं जैसे। नाउ वी हैव 0.051, we are assuming x. Okay, now we have to find the value of x only. 2 into Na, 102 पॉइंट है, 1 आगे नीचे, 1 2 3, 1 2 3, तो पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से। तो 51 से 2 टाइम में जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल। यानी कि जो Na की वैल्यू है अपने पास उसको हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे, 10⁻23 होती है, बट यहाँ पे नीचे 3 आ गई ना, 0, तो क्या होगा, ऊपर 20 रह जाएगा उसके बेटा। सो इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी आयंस दिए अपने को, इट इज द आयंस वी हैव ऑफ Al3+। तो कहाँ है वैल्यू भाई, ये, इट इज द आंसर। ठीक है, सो द नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन 2 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द potassium ion, you can see potassium ion in 2 mole. So first thing, this is the value for moles, remember that, we know 1 mole, but इसने कहा 2 mole means 2। और देखिए एक मॉलिक्यूल में हमारे पास अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये सोडियम कितना दिख रहा है, सॉरी पोटेशियम कितना दिख रहा है आपको, 4। तो 4 एक मॉलिक्यूल में है और हमारे पास 2 मोल हैं, सिंपल है। तो 4 into 2, ऐसे दिखाता हूँ चलो आपको, 4 एक मॉलिक्यूल में है
और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल है अपने पास। तो सॉल्व कर लिया तो ये आंसर डायरेक्टली आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1.71 ग्राम शुगर? अभी आपने लास्ट पेज पे ही, अगर आपको याद होगा तो आपने निकाला था इसका मोलर मास, जो कि ये आया था। ओके, आपको निकालना है कार्बन एटम जो कि इसमें प्रेजेंट हो, ध्यान रखना इस चीज का, 1.71 में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, 1.71 ग्राम जो आपके पास प्रेजेंट है शुगर, उसमें कितने हैं आपको निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, हो सकता है जैसे यहाँ पे नहीं दे रखा है, पहले दिया था आपको पर यहाँ नहीं दे रखा है। तो था फॉर्मूला C12H22O11 थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जरा गौर करना। पहले बात कर रहे हैं 1 मोल की आपसे, ठीक है। टेक अ लुक हियर, व्हेन 342 ग्राम, जो कि 1 मोल की वैल्यू हम जानते हैं इसके, ग्राम है ना, तो उस समय देखिए Na तो होंगे मॉलिक्यूल, है ना, और उसमें कितने थे? एक मॉलिक्यूल में 12 एटम थे वो आपके पास। अब ये मास, ये भी मास बाय एटम हो गया डायरेक्टली, तो मास बाय एटम, तो हमें एक्स निकालना है, सिंपल हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये अपने पास? 18। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स निकालना है, मतलब कहा जाए तो एक तरह से। ये वैल्यू जो पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये जो है ना लेफ्ट वाली वैल्यू, ये वाली, ये मैंने 1 मोल के कॉन्सेप्ट से ही पुट की है वैल्यू, आपको याद हो तो। भाई 1 मोल शुगर का मास फिक्स है, ठीक है। अब ये क्या, ग्राम पर मोल था, मतलब इतने तो मॉलिक्यूल हो गए 1 मोल में। और एक मॉलिक्यूल में क्या था आप जानते हैं, 12 एटम थे। फॉर्मूला में लिखूँ दोबारा आपके लिए, C12H22O11, ये था अपना फॉर्मूला शुगर का। सो यू कैन सी 12 atoms are present in 1 molecule, so 12, but we have 1 mole में इतने होते हैं molecules because of, ठीक है। now I am just solving the calculation. It is 342. now take a look, पॉइंट है, पहले पॉइंट का 1, देन आफ्टर 2 वैल्यूज लिखी है वहाँ पे, इट मीन्स इट विल बी 100। तो पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये इससे जाएगा 2 टाइम में, हम जानते हैं, ठीक है। और ये जाएगा इससे 6 टाइम में। इसको सॉल्व कर लो बस। तो जो वैल्यू आएगी, ये 2 इसको कम कर देगी वैल्यू उसके लिए, तो 21 आ गया अगर देखा जाए तो। बट प्रॉपर इन साइंटिफिक नोटेशन व्हेन वी से, तो इधर शिफ्ट होगा पॉइंट, क्योंकि देखा जाए आपने तो क्या होगा, एक वैल्यू पॉजिटिव की पावर में इंक्रीज हो जाएगी। सो इट इज द एटम्स ऑफ कार्बन विल बी देयर, ठीक है। हम्म, कहता है अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम हीलियम and 32 gram of O2, sorry hydrogen it is, occupy and how much volume at NTP, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। ध्यान दें इसमें हम कैसे कर सकते हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ऑक्सीजन, ध्यान रखना। 2 ग्राम H2 है अपने पास, 32 ग्राम O2 गिवन है अपने को। सो बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं मोल्स, 2/2, 1 मोल फॉर ऑक्सीजन, 32/32 अगेन 1 मोल,
So remember that both are gases. So total गैसियस जो मोल्स आ रहे हैं ना आपके पास वो कितने आ रहे हैं? 2 मोल्स आ गए। तो 2 मोल्स का जो वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा? भाई 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, हमारे पास 2 मोल्स हैं तो 44.8 लीटर will be the total volume there. So it is the answer. Okay. Now the number of oxygen atom present in 1 mole of oxalic acid dihydride. यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिकली। हम्म। अच्छा पीछे पेज पे थे हम लोग। C2H2O4 dot 2H2O. It is the oxalic acid dihydride. ओके। अब हमें क्या निकालना है? 1 मोल हमारे पास प्रेजेंट है अगर ये, तो कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? सो सिंपल, इट इज 1 मॉलिक्यूल, रिमेंबर दैट। In this 1 molecule we have 6 atoms that you can see। 4 यहाँ पर है बेटा, और 2 बन जा 2 यहाँ से आएंगे तो 6 हो गए। और सिंपली हमें निकालना किसमें? 1 मोल में। 1 मोल मतलब क्या हो गया? दिस वन। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट अपना डी। ठीक। सो दीज आर द 20 क्वेश्चंस टोटल। ओके, जो अपन ने यहाँ पे ट्राई किए हैं समझाने का आपको। एंड आई होप के ये टॉपिक समझ में आपको अच्छे से आया होगा विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स। अभी अपना एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ये, अपने लेक्चर 2 में, जिसमें बताया था क्वेश्चन आपको खुद ही करना था। ये क्वेश्चन ऑफ द डे था अपने पास एक तरह से। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा, है ना। देखते हैं किस बच्चे ने सही निकाला, जरा चेक करें आप लोग अपने आप से। देखिए इसका तरीका क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब बात कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव 1 ग्राम ऑफ ईच ऑफ देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मोल, एंड मोल को हम इंटू कर देंगे उसके एटॉमिसिटी से, तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट देयर। ओके। सो फॉर ए 1/18 इट विल बी इट्स नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि गिवन मास अपन मोलर मास हमने पुट किया है, एंड एटॉमिसिटी इज 3। सिंपल। बी 1/16 into 5, it is 1/80 into 4, and D 1/44 into 3, 1/6, it will be this one. So it is 1/20, and इसको आप कट कर देंगे तो 3 जा 3, 3 4 जा 12, 2
से 18 एंड नाउ यू कैन सी डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल यहाँ पर है, इट मीन्स जो वैल्यू आएगी सबसे ग्रेटर आएगी, सो इट विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स देयर। ठीक, लोएस्ट पूछा जाएगा तो ये लोएस्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सिंपल। लोएस्ट एटम्स जो होंगे वो यहाँ पर होंगे। ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, नाउ फॉर टुडे इट इज द क्वेश्चंस ऑफ डे। इसका आंसर निकालें आप लोग और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, आई विल चेक इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें शाउट आउट देंगे उसको, नाम यहाँ से बताएंगे उसका डेफिनेटली। ओके, सो फिनिश करते हैं लेक्चर। आई होप के टॉपिक आप लोगों ने समझा अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।